हेलो फ्रेंड्स, होप ऑल इज गुड। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं ज़ोडिएक के साइंस सबको बता रही हूँ, टीच कर रही हूँ। तो ज़ोडिएक साइंस की श्रृंखला में मेरा आज का साइन है स्कॉर्पियो। व्हाट इज स्कॉर्पियो? बिच्छू। इट इज द एट्थ साइन ऑफ द ज़ोडिएक and its lord is Mars. Symbol is Scorpio and lord is Mars. So let us see what happens when this moon, which is a karaka of mind, man, mother, motherly feelings, all the things related to mind are entering in a strong sign of Mars, Scorpio. So, what will happen? It is also a significator of Mars. Eighth sign is a significator of eighth house. So while moon entering the Scorpio, it also takes the signification of eighth house. What are they? Let us know. The signification of eighth house are secrecy. It is a house of secrecy, hidden things, inheritance, research, death, sudden gains, sudden loss, woman marital status, longevity, capital punishment, and hidden talents. All these things are related to eighth house. So, what moon will do when it is entering a sign of moon, Mars, entering the sign of Mars, eighth house of horoscope, the personality will automatically take all the traits of this eighth house signification. हमारा माइंड माइंड बेंट वैसा ही हो जाएगा। जो भी सिग्निफिकेशन रिलेटेड टू हैं एट्थ हाउस के, वैसा ही हो जाएगा। एंड ऑल्सो इट्स लॉर्ड इज मार्स, इट इज अ स्ट्रॉन्ग प्लैनेट, एंड मून, it is a delicate planet. It also represents our water content. It also represents our stomach. So now let us see the personality belonging to this sign. What are the traits of that personality? A Scorpio sign person has very deep emotions, deep intense emotions. But what happens? They have so many emotions at a high level of emotion, very emotional they are person. They feel that they must hide their emotions. Moon is a watery planet, and Scorpio, which is eighth sign, it is also a watery planet, and it's a earthy planet. It gets fixed. Earthy means it gets fixed. Mind get fixed in these thoughts. Whatever the signification of the eighth house, mind takes all the significations. The nature may differ on the nakshatra you are born, because every sign has three nakshatras as already told by me. So there may be some variation. It's just, I'm telling just a generalization. So Scorpio moon relates to hidden aspect of your life, your fears, your hopes, your longings. आप क्या चाहते हो? आपकी आशाएं क्या हैं? आप क्या बनना चाहते हो? And this sign is so emotional that caring about the people
around him or her, say his or her family, they may not get along with the other people around them. अपने परिवार से या अपने जहां पर भी वो रहते हैं उनसे इतना प्यार करने लग जाते हैं, उनके उनके प्रति इतने इमोशनल हो जाते हैं कि जो बाकी के लोग हैं उनको वो जाने अनजाने में थोड़ा बहुत वो इग्नोर्ड फील करते हैं, जो उनका एरिया अराउंड है। अपनी फैमिली को तो वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं। एंड इनमें एक सिक्स सेंस होती है। स्कॉर्पियो मून्स हैव द अवेयरनेस ऑफ व्हाट नॉट बीइंग सेड। आपने बोला भी नहीं है लेकिन वो समझ जाएगा कि आप क्या चाहते हो, आप क्या कहने वाले हो। वो उड़ती चिड़िया के पंख गिन लेगा। उसमें सिक्स सेंस होती है, वो जान जाता है। और इसीलिए एक तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो गए और एक सिक्स सेंस हो गई। तो वो पहले ही जान जाएगा कि मैं क्या चाह रही हूँ। मैं उसके सामने बैठी हूँ, मैं कुछ कहूंगी भी नहीं, मेरी नजरें यूं से यूं उठी भी नहीं, और वो फट से कर देगा। स्कॉर्पियो मून, it goes deep to find out the depth of love and emotions. Like कैसे? जैसे कि आप समुद्र में डुबकी लगाते हैं और वहां से रत्न ढूंढ के लाते हैं, इसी तरीके से जो स्कॉर्पियो पर्सन है वो भी आपकी डेप्थ ऑफ इमोशंस को चेक करता है। आपके बिल्कुल अंदर तक, आपकी आत्मा तक घुस जाएगा और रियलाइज करेगा कि हाँ आप वाकई में उसको प्यार कर रहे हो। वो ही और शी फील्स कि सच में ही ऐसा है, आप उसको चाहते हो कि नहीं चाहते, जो कह रहे हो वो सच है कि नहीं है। अगर आपने उसको कहा कि हम तुम्हें, ऐसे ही बोल दिया कि आई लव यू या मैं बहुत प्यार करती हूँ, या उसके फैमिली में किसी ने भी बोला कि हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, या उसके पार्टनर ने, वो ऐसे बिलीव नहीं करता। वो जैसे डुबकी लगाते हैं ना समुद्र में, वो आपकी आत्मा में डुबकी लगाकर देख कर लाएगा कि सच में ऐसा जो आपने कहा है वो है या नहीं है। और अगर उसको लगा कि नहीं मेरे साथ धोखा हो रहा है, तो फिर क्या होगा? उनको अक्सर पेट दर्द हो जाती है। क्यों हो जाती है? हम कहते हैं ना कि अरे पेट दर्द हो रही है, पेट दर्द हो रही है। अब ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, पेट दर्द हो सकती है, लेकिन जनरली फ्रीक्वेंटली हो तो इसका क्या मतलब है? पेट दर्द इसलिए होती है कि जो एर्थ साइन है ये स्टमक के साथ रिलेटेड है और मून भी स्टमक के साथ रिलेटेड है। तो जरा भी उनको लगा कि आप उनकी केयर नहीं कर रहे हैं या उनके साथ थोड़ा फ्लर्ट हो रहा है या उनको अटेंशन नहीं मिल रही है, तो उनके पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। तो इफ यू आर ए स्कॉर्पियो साइन एंड स्कॉर्पियो साइन इन योर फैमिली, तो वॉच इट। पेट दर्द का कारण जरूरी नहीं है कि उसको कोई इंडाइजेशन हुआ है, उसको इमोशनल ट्रॉमा हो जाता है। ही और शी गेट्स इमोशनल ट्रॉमा। और क्या चाहते हैं ये लोग अपनी अटेंशन भी बहुत अटेंशन सीकिंग होते हैं। उनको अटेंशन चाहिए, उनको लगता है भैया सब लोग हमारी तरफ देखें। इतना प्यार करते हैं, चाहते हैं कुछ भी ऐसा करेंगे जिससे कि आपकी अटेंशन एकदम से अट्रैक्ट कर लेंगे। और सस्पिशियस नेचर के भी होते हैं। सस्पिशियस नेचर होने के कारण कई बार लोग उनको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं, जैसे उनके पार्टनर हैं, उनके बारे में कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वहां गए थे ये तो नहीं किया, ये तो नहीं हुआ, मुझे फ्लर्ट तो नहीं कर रहे, क्योंकि खुद इतने ज्यादा ट्रू टू देयर इमोशंस होते हैं, उनको इतना प्यार करते हैं, तो उनसे भी उतनी लॉयल्टी मांगते हैं। सो दे कीप ऑन चेकिंग, सो बी वेरी अवेयर, दे विल चेक योर पर्सनैलिटी। देखेंगे कि वाकई में व्हाट यू आर सेइंग इज इट ट्रू और नॉट। अब इनका नेगेटिव ट्रेट क्या हुआ? नेगेटिव ट्रेट ये हुआ कि पीपल कई बार इनको मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। क्यों मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं?
भाई अपने इमोशंस को इतना दबा के रखते हैं जैसे सारी दुनिया का भार इनके सिर पर आ गया है। नहीं बताते हैं, अगर तुम्हें प्यार कर रहे हैं तो नहीं बताएंगे, हाइड करने की बताएंगे, लेकिन दे विल हाइड जितना उनसे हाइड हो सकता है। और आप वही रीड करना चाहोगे, आपसे अपने सीक्रेट्स भी नहीं बताएंगे, सिर्फ आप जो वो चाहेंगे शेयर करना, आपको दिखाना, सिर्फ वही नजर आएगा। अदरवाइज तो वो सब अपने मन में ही रख जाते हैं। इसलिए कई बार उनमें बहुत कुंठा हो जाती है, क्योंकि अगर आप अपने इमोशंस को शेयर कर लेते हो या किसी फ्रेंड को या अपने किसी विश्वसनीय पर्सन को बता देते हो, तो आपका दिल हल्का हो जाता है। ये सारी दुनिया का भार अपने मन में समा लेते हैं, नहीं बताना चाहते कि हम दुखी हैं या किस बात से दुखी हैं, या फलाने बंदे ने हमको धोखा दिया है, या हम क्या चाहते हैं, हमारी होप्स क्या हैं, हमारी कामनाएं क्या है, ये आपको नहीं बताते, तो आप ठीक से समझ नहीं पाते। आपको लगता है बड़े ईगोइस्टिक हैं, बड़े अनइमोशनल से हैं, जबकि ये ऐसा नहीं होते हैं। इमोशनल तो सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अपीयरेंस में कैसे होते हैं? दिस इज अ टॉल पर्सनैलिटी, लंबे होते हैं देखने में, हैंडसम इनका अपीयरेंस होता है, ब्यूटीफुल होते हैं, एलिगेंट होते हैं, ब्रॉड इनकी आईज होती हैं, फोरहेड भी ब्रॉड होता है, चेस्ट भी ब्रॉड होती है, एंड दे हैव ए फोर्सफुल पर्सनैलिटी, खूबसूरत पर्सनैलिटी होती है। बोन्स इनकी वेल डेवलप्ड होती हैं, बेली राउंड होती है, खाने के शौकीन होते हैं। अगर किसी की बेली राउंड है, इट डज मीन कि वो बंदा खाने का शौकीन है। आप आंख बंद करके कह सकते हो यार आप खाने के शौकीन हो, तो उनके पेट के थ्रू आप उनका विश्वास जीत सकते हो। और इनके जो बाल होते हैं, शॉर्ट होते हैं, थिक होते हैं, करली होते हैं, तो इस बात से भी आप पहचान लीजिए ये स्कॉर्पियो पर्सन है। प्रोफेशन क्या होते हैं इनके? प्रोफेशन कौन से इनके लिए बेस्ट सूटेड है? आर्ट है, गारमेंट है, डिप्लोमेसी है, डिफेंस, आर्मी सर्विसेज, कोर्ट्स, लॉयर्स, मेडिसिन्स, केमिस्ट, सर्जन्स, रिसर्च साइंटिस्ट, occult sciences, because occult sciences, because it belongs to eighth house. तो eighth house is a house of research, is house of hidden things, बाहर निकाल के लाते हैं। तो ये ऑकल्ट साइंस में भी बहुत अच्छे होते हैं, इन्वेंटिव होते हैं। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी ये सक्सेस पा सकते हैं, एंड दे आर वेरी गुड फिजिशियंस ऑल्सो। सो आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। I'll be very happy if you like what I say. You have any queries, you can ask me in description box. So आज जल्द ही आती हूँ अगले वीडियो के साथ। Till then, bye bye. Thank you for listening so patiently.